94 پر ضمنی انتخاب کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نیو نیوز کو موصول ہو گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 77 سے ایم کیو ایم کے سید ہاشم رضا 86 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے اشرف جبار 35 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 41 سے ایم کیو ایم 128 ووٹ لے کر پہلے اور پی ٹی آئی 70 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ مزید بھی آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ پہلا نتیجہ موصول ہو گیا ہے۔ کراچی میں پی ایس 94 پر ضمنی انتخاب کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نیو نیوز کو موصول ہو گیا۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 77 سے ایم کیو ایم کے سید ہاشم رضا 86 ووٹ لے کر پہلے، تحریک انصاف کے اشرف جبار 35 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ پولنگ اسٹیشن نمبر 41 سے ایم کیو ایم 128 ووٹ لے کر پہلے اور پی ٹی آئی 70 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد حماد سے۔ حماد، بتائیے گا کون اور کس کا پلڑا کس طرح سے بھاری ہے ضمنی مارکے میں؟ دیکھیں پی ایس 94 میں ضمنی انتخاب جو ہے آج صبح اس میں پولنگ کا عمل شروع ہوا صبح 8 بجے اور 5 بجے شام میں جو اس پولنگ کا عمل ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ووٹوں کی گنتی کا جو ہے وہ عمل جاری ہے، لیکن سب سے جو پہلا غیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتیجہ ہے وہ آ چکا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 77 سے ایم کیو ایم کے محمد اشرف جو ہے وہ 86 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ، جبکہ پی ٹی آئی کے ہاشم رضا 35 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ۔ اسی طرح جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشن سے جو ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں پولنگ اسٹیشن نمبر جو 84 ہے اس میں ایم کیو ایم کے جو ہے امیدوار 84 ووٹ لے کے سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو ہے محمد ہاشم رضا امیدوار 51 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ۔ ایم کیو ایم کے امیدوار جو ہے محمد اشرف اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہاشم رضا، ان دونوں کے درمیان جو ہے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ مختلف پولنگ اسٹیشن سے جو ہے رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن سے جو آنے والے رزلٹ ہے اس میں جو ہے ایم کیو ایم کے امیدوار جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار سے جو ہے زیادہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں محمد ہاشم رضا وہ دوسرے نمبر پہ جو ہے سیر فرصت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے یہاں پر جو باقی جو دیگر جماعتیں ہیں جن میں مہاجر قومی دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر دیگر جماعتیں ہیں وہ کتنے ووٹ لے پاتی ہیں۔ حماد، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف نے عثمان بزدار سے متعلق گھٹیا زبان استعمال کی، وہ بتائیں خود وزیر اعلیٰ کیسے بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مخالفین کو کھری کھری سنا دی ہیں اور کہتے ہیں زرداری اور بلاول کو بھی پارٹی وراثت میں ملی، حکمرانوں سے ان کے مال کے بارے میں پوچھنے سے جمہوریت ختم میں نہیں پڑ جاتی۔ میاں والی میں نمل کالج کانوکیشن سے خطاب میں وزیر اعظم بولے جمہوریت احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، مستقبل میں پاکستان کا ہر لیڈر عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ شہباز شریف نے بڑی طنز کیا، پنجاب کے چیف منسٹر میرے سامنے عثمان بزدار بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف آپ کا کیا، آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ۔ دوسری طرف دیکھو وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے کہ جی ہمیں وراثت میں مل گئی ہے پولیٹیکل پارٹی۔ آپ نے تماشا دیکھ لیا ہے، جب سے ان سے جواب طلب کر رہے ہیں اربوں روپے کی چوری ہیں کیا ہے کچھ ہے، پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب دینے لگے ہیں۔ جو بھی پاکستان کا لیڈر ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے۔ عوام کا پیسہ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا اور وہ قانون کے نیچے ہوگا۔ کپتان کے بعد کھلاڑی کی بھی نون لیگ پر چڑھائی۔ سینئر وزیر پنجاب علیم خان کہتے ہیں شہباز شریف نے اپنے ناقص منصوبوں سے صوبے کو دلدل میں دھکیل دیا، بہت جلد اس دلدل سے باہر نکل آئیں گے۔ شہباز شریف دور کے تمام منصوبے سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ بتائیں انہوں نے پنجاب کو مثالی صوبہ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ اسلام آباد میں علیم خان بولے عمران خان کے ویژن کے مطابق پولیس میں اصلاحات لا کر دکھائیں گے۔ جو ہمارے خاص طور پہ معاشی حالات ہیں اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پہ جاتی ہے، کیونکہ وہ 10 سال وزیر اعلیٰ تھے اور تمام تر جتنے بھی آپ نے پروجیکٹس دیکھے ہیں اس وقت جو ہمارے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں، جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے شہباز شریف صاحب کے دور کے ہیں۔ یہ پروجیکٹس بنائے ہوں جن کو اس وقت چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے تھا وہ اسکول ہونے چاہیے تھے، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تھیں، وہ کالج ہونے چاہیے تھے، وہ نئی یونیورسٹیاں ہونی چاہیے تھیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جب آپ اس کی بجائے آپ اورینٹ ٹرین بنا دیں جس کا 300 ارب روپیہ لگ جائے، پھر آپ میٹروز بنا دیں، اس کے ساتھ آپ ایک بہت بڑی دلدل کا شکار ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے نکلنے میں بہت دشواری آ رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب جو ہے
वो अपने जो भी अपने लीडर का विजन था उसके ऊपर हम पूरी तरह काम। अगर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत को धमकी दे डाली। कहते हैं कि इमरान खान ने 50 लाख घर देने की नहीं गिराने की बात की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है उन्हें पीटीआई के तरीकेकार से पाकिस्तान डूबता दिखाई दे रहा है। कमर जमान कायरा भी इंसाफ सरकार पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम आयद कर दिया और बोले हुकूमत जो मर्जी कर ले, जयालों को झुका नहीं सकती। पीटीआई के तरीकेकार से पाकिस्तान को डूबता देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफात पर चढ़ाई, बोले हुकूमत को आइन का कुछ नहीं पता। आइन की समझ अभी पीटीआई की हुकूमत को आई नहीं है। मेरा ख्याल है आ जाएगी। बहुत पहली बार हुकूमत के करीब भी आए तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। इनके होते हुए पाकिस्तान मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऑपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ के लिए जंग लड़ने का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत एहतसाब चाहती है तो अपने वज़रा का भी करे। उधार की रकम से कोई घर या फैक्ट्री नहीं चलती। हुकूमत 50 लाख घर बनाने के बजाय गिराने में लगी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि तब्दीली सरकार सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर भी उन्हें नहीं झुका सकती। इस तरह के हथकंडों से तो बड़ा अल्लाह का करम है। मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मुझे तो बड़े ताकतवर लोग नहीं झुका सके। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, अपने दोस्तों अपने नजरिए के साथ हूँ। कमर जमान कायरा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती MNAs जमीनों पर कब्जा करने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाबों के शहजादे को अगले बरस कप्तान की कुर्सी गिरती दिखाने देने लगी है। मंजूर विसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं 2020 में इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। वो अगले बरस वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इमरान खान के साथ जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। टूटने वाले इत्तेहाद में ही से एक और वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। मंजूर विसान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में गुरबत का ख्वाब देखा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। जेल में हो या जेल से बाहर मुलाकात जरूर होनी है। 20 इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है और 2020 में ये इत्तेहाद जो इमरान खान के साथ है सब टूट जाएंगे। इत्तेहाद नहीं रहेंगे, ये अक़लियत में हो जाएगा। अक़लियत के लिए और कोई वे नहीं है। इसी के ही असेंबली से एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा। जेल हो या बाहर हो, जेल हमारे लिए नई बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी नई बात नहीं है, मेरे लिए भी नई बात नहीं है। जेल में हो बाहर हो, मुलाकात जरूर होगी। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हुकूमत से फासले कम और अपोजिशन से बढ़ने लगे। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मुतालबा मान लिया। 3 रुकनी हुकूमती कमेटी सरदार अख्तर मेंगल और आर्मी चीफ की मुलाकात के लिए आला क़यादत के साथ वक्त और तारीख तय करेगी। BNP मेंगल की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन आगा हसन बलोच ने तस्दीक करते हुए कहा लापता अफराद इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए चाहिए थे 172 वोट, मगर मिले 176। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के लिए फैसला कुन वोट थे 4। ये 4 वोट थे BNP मेंगल के। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिखाई सर्द मोहरी तो BNP से फासले बढ़ने लगे। सरदार अख्तर मेंगल ने भी अपने अरकान अपोजिशन के इजलास में भेजकर कर दिया नाराजगी का इजहार। हमने लिस्ट मुहैया की थी कौमी असम्बली में, जो अभी भी आपकी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। उसमें 5128 के करीब लोग थे। अब उसमें से अगर 350 बाजियाब हो गए हैं तो मेरे ख्याल में नाकाफी है। BNP की जानब से सियासी दबाव, हुकूमत भी हुई मजबूर मुज़ाकरात पर। BNP ने डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी, आगा हसन बलोच और सनाउल्लाह बलोच पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। आगा हसन कहते हैं BNP का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात का मुतालबा भी मान लिया गया है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हो तो इस हवाले से हम मुलाकात करेंगे, उनसे बैठेंगे, जो बलूचिस्तान के लापता अफराद का मसला है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी शहरियार अफरीदी, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और मखदूम खुसरो बुख्तियार पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बना दी है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेख, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला अहम तरीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है लापता अफराद के वरसा के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सऊदी अरब जल्द गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। CPEC की सूरत हाल में हमारे पास तरक्की का बहुत बड़ा मौका है।
RCD हाईवे पर जल्द ट्रॉमा सेंटर फाल भी हो जाएगा। है और इसी के साथ इंशाल्लाह आप और भी देखेंगे, जैसे हालिया में सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर भी आए थे ग्वादर, उन्होंने ऑयल रिफाइनरी के हवाले से वहाँ विज़िट किया। इसी की तरह आपने देखा होगा कि पार्को ऑयल रिफाइनरी का भी एक प्लान है जो गडानी के ऊपर ऑयल रिफाइनरी लगाने का। चाइनरीज ऑलरेडी हैं। रेकोटेक के हवाले से इंशाल्लाह इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स हैं, हम एक पूरा मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि हम सिर्फ रेकोटेक तक महदूद ना रखें, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं उन सब पे काम होना चाहिए। मिसिंग पर्सन का इशू बलूचिस्तान में एक बहुत बड़े अरसे से चल रहा है और आपने देखा होगा कि मामा कदीर और नसरुल्लाह का एक 10 साल का कैंप था जो बलूचिस्तान में कायम था और तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले हमारे उनसे तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने से मुज़ाकरात चल रहे थे और हमने उनको यही निशानदेही करवाई कि हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिंसियर एफर्ट्स के साथ इस इशू पे काम करेगी और डिलिब्रेशन करेगी, चाहे वज़ीर आज़म साहब से मिलना हो या सारे स्टेक होल्डर्स से मिलना हो। साने साहिवाल में मुलव्विस CTD के चहलकारों का जुडिशल रिमांड शुरू हो गया है। JIT ने भी तहकीकात में आवाम से मदद की अपील कर दी। कहा है किसी शख्स के पास ठोस सबूत, चशमदी शहादत या वीडियो मौजूद है तो फौरी पेश करे, नाम सीगा रास पे रखा जाएगा। साने साहिवाल पर 7 रोज बाद अदालती कार्रवाई शुरू। 4 अफराद को गोलियों से भूनने वाले 6 CTD एहलकारों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल कर दिया। उधर सानेह की इंक्वायरी में JIT ने अवाम से मदद मांग ली। ताउन की अपील के लिए इश्तेहारात भी जारी कर दिए। पंजाब पुलिस ने कहा किसी शख्स के पास ठोस सबूत, चश्मेदी शहादत या वीडियो मौजूद है तो पेश करे। मदद करने वाले का नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। तौंसा शरीफ में बच्चों से ज्यादती और इसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले इंसानी भेड़िया कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम ने एक मुकदमे में तो अबूरी जमानत हासिल कर ली, लेकिन अदनान जफर थाना दराहमा में दर्ज एक और मुकदमे में मतलूब निकला। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तौसा शरीफ में बच्चों से ज्यादती और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला जिनसी दरिंदा कानून की पकड़ में आ गया। मुल्जिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज अदनान थाना वराहमा डेरा गाजी खान को भी मतलूब है। मुकदमात 2 लेकिन इल्जाम एक ही। एक मुकदमे में मुल्जिम ने अबूरी जमानत करा ली, दूसरे में मफरूर करार दी। न्यूज़ ने 25 जनवरी को खबर नशर की तो कानून हरकत में आ गया। मुल्जिम के वालिद हेड कांस्टेबल जफर को केस पर असरअंदाज होने के जुर्म में मुअत्तल कर दिया गया। अदनान जफर ने मुतादिद बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाया और वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदे को बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया। कहते हैं अमन जंग से नहीं मुज़ाकरात से होता है। बिल आखिर दुनिया को हमारा मौक़िफ़ मानना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया मुल्की मफादात पर न पहले कोई समझौता किया न आइंदा करेंगे। इमरान खान हुकूमत किसी से सौदेबाजी नहीं करने आई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा माह दौरा बरतानिया के दौरान हाउस ऑफ कॉमन से खिताब में कश्मीरियों पर भारतीय मुज़ालम के खिलाफ आवाज़ उठाने का ऐलान भी कर दिया। चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया। मुस्तकबिल में मज़ीद खुशखबरियां भी मिलेंगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान माहिदे को बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। हम एक कौम हैं, भिखारी नहीं, सब जान लें। इमरान खान की हुकूमत सौदेबाजी करने नहीं आई। मुल्की मफाद पर कोई समझौता न किया न करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम अपने मुंह से कह रहे हैं और उनका इंटरव्यू भी आपने सुन लिया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ना हो, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन जाए। ये नहीं कि तुम ये करो, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तुम ये करो, सौदा ना हो। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर शेख रशीद की राय का एहतराम किया, मगर अपनी राय भी बता दी। जाते जाते मशवरा दिया कि अपोजिशन ऐवान में अपना मौक़िफ़ पेश करे, हुल्लड़बाजी न करे।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, खुदा का शुक्र है अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के हमारे 5 साल पुराना मशवरे पर अमल शुरू कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम होगा। जनरल बाजवा और अस्करी क़यादत को दानिशमंदाना हिकमत अमली पर सलाम पेश करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने अमेरिका के अफगानिस्तान से 18 माह के अंदर इनखला के फैसले को सराहते हुए कहा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए ज़रूरी है कि जारी तनाज़ात और दहशतगर्दी में मुआवन तमाम मसाइल को ख़त्म किया जाए। क़याम अमन के लिए अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज निकालने का फैसला कर लिया है तो अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान में भी क़याम अमन के लिए ये एक खुश आइंद इक़दाम है। आते ही करतारपुर सरहद खोली, अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात कराए, पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के मामले में वापस लाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कामयाब खारजा पॉलिसी का सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिया। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारी अमन की पॉलिसी से पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। कोशिश है पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोला जाए ताकि सयाहत का फ़रोग बढ़े। हमने आकर के पाकिस्तान की जो तमाम 70 साल हमारी जो पॉलिसीज थी उनको तब्दील करके रख दिया। हमने आते ही करतारपुर बॉर्डर खोला, हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े और हम मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात है, चाहे वो यमन और सऊदी अरेबिया का मामला हो, हमने उनको कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। हमारी जो पॉलिसी है वो अमन की पॉलिसी है। हम समझते हैं कि ये पॉलिसी का पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान को स्टेबल कर लेते हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं हम उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इदारों को उनके पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दरबार करतारपुर का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलाके के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। गंदम की खड़ी फसलें राहदारी मंसूबा बनने की वजह से तबाह हो रही हैं। हुकूमत ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। एहसन इकबाल ने मुल्क भर में जारी कामयाब खारजा पॉलिसी का सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिया। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारी अमन की पॉलिसी से पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। कोशिश है पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोला जाए ताकि सयाहत का फ़रोग बढ़े। हमने आकर के पाकिस्तान की जो तमाम 70 साल हमारी जो पॉलिसीज थी उनको तब्दील करके रख दिया। हमने आते ही करतारपुर बॉर्डर खोला, हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े और हम मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात है, चाहे वो यमन और सऊदी अरेबिया का मामला हो, हमने उनको कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। हमारी जो पॉलिसी है वो अमन की पॉलिसी है। हम समझते हैं कि ये पॉलिसी का पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान को स्टेबल कर लेते हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं हम उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इदारों को उनके पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दरबार करतारपुर का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलाके के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। गंदम की खड़ी फसलें राहदारी मंसूबा बनने की वजह से तबाह हो रही हैं। हुकूमत ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। एहसन इकबाल ने मुल्क भर में जारी तजावुज़ात पर तनकीद करते हुए कहा, गरीबों की झुग्गियां गिराई जा रही हैं। इमरान खान का कामयाब खारजा पॉलिसी का सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिया। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारी अमन की पॉलिसी से पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। कोशिश है पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोला जाए ताकि सयाहत का फ़रोग बढ़े। हमने आकर के पाकिस्तान की जो तमाम 70 साल हमारी जो पॉलिसीज थी उनको तब्दील करके रख दिया। हमने आते ही करतारपुर बॉर्डर खोला, हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े और हम मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात है, चाहे वो यमन और सऊदी अरेबिया का मामला हो, हमने उनको कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। हमारी जो पॉलिसी है वो अमन की पॉलिसी है। हम समझते हैं कि ये पॉलिसी का पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान को स्टेबल कर लेते हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं हम उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इदारों को उनके पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दरबार करतारपुर का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलाके के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। गंदम की खड़ी फसलें राहदारी मंसूबा बनने की वजह से तबाह हो रही हैं। हुकूमत ने कोई मंसूबाबंदी